आगे देखो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? मैम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होती है द स्टार्स, द प्लैनेट्स, और काफी ज्यादा ऑब्जेक्ट उन्हें इन द स्काई में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स स्टार हो गए, प्लैनेट हो गया, कुछ भी होते हैं, उन्हें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है बेटा, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? क्यों ट्विंकल होते हैं? प्लैनेट्स ट्विंकल होते हैं, हमें क्यों नहीं दिखाई देते? बोलो। पता है बेटा? मैम नो। व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल? क्योंकि बेटा हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है? ज्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से हमें एक पॉइंट लाइक बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है? इनमें फ्लक्चुएशन होती दिखाई देती है बेटा, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? फ्लक्चुएशन होती है जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये ट्विंकल होते हैं, ठीक है? प्लैनेट्स हमसे ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होते, ठीक है? समझ आ गया बच्चे? बड़े साइज के दिखाई देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हमें लगता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं होते। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। चल गया बेटा, आगे देखो नेक्स्ट। द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन सी बताई गई है यहाँ पे बेटा? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स The stars, the planets, and other objects in the sky are called celestial objects. yes, moon is also celestial object. पता चल गया बेटा? Ma'am, yes. Okay, next. The study of celestial objects and associated phenomena is called astronomy. In ancient India, our ancestors performed methodical observations of sky. Their knowledge of astronomy was highly advanced for their time. Passage of the sun, stars, moon, and planets in the sky helped them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops, fixing the dates of seasons and festivals. Let us also make some observations of celestial objects and learn about them. Activity 17.1. The moon. Observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to the next. Make a sketch of the moon every night in your notebook and note the day from the day of the full moon. Also note every day of the part of the sky east or west in which the moon is seen. Is there a change in the shape of moon every day? Are there days when the shape of the moon appears perfectly round? Are there days when the moon cannot be seen at all even if the sky is clear? The day on which the whole disk of the moon is visible is known as the full moon day. Thereafter, every night the size of the bright part of the moon appears to become thinner and thinner. One of the 15th day, the moon is not visible. This day is known as the new moon day. The next day, only a small portion of the moon appears in the sky. This is known as the crescent moon. Then again, the moon grows larger every day. On the 15th day, once again, we get a full view of the moon. The various shapes of the bright part of the moon as seen during a month are called phases of the moon. Phases of the moon play an important role in social life. Almost all festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. For yes, example, इसमें बेटा Diwali. एक मिनट बच्चे, फेसिस ऑफ द मून, फेसिस ऑफ द मून क्या होते हैं मैम? गुड मॉर्निंग। फेसिस ऑफ द मून क्या होता है बेटा? अलग अलग टाइप के हम देखते हैं ना मून की, अलग अलग शेप्स बचे, अलग अलग शेप्स बनती है मून की, पता ना आपको? मैम यस। फुल मून डे हम बोलते हैं, ठीक है? हाफ मून होता है किसी किसी दिन, है ना? पता है यस बेटा? मैम। अब देखो इसमें क्या पढ़ा है यस आपने, बताओगे?
क्या पढ़ा बेटा इसमें? मैम इसमें हमने पढ़ा है, यस एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ा है। यस इसमें बताया गया है कि बी रोज एक्टिविटी में बताया गया कि मून को रोज देखो और उसकी एक नोटबुक पे पिक बनाओ और फिर अगले दिन ऐसे ही करते रहो। और द शेप ऑफ द मून एवरी डे, कि आप देखोगे कि हर रोज मून की शेप चेंज होती है। यस और द डे ऑन विच, जब मून के 15.5 डेज हो जाते हैं तब मून दिखाई नहीं देता और फिर अगले उसको कहते हैं न्यू मून डे। यस आगे मैम अगले फिर 15 डेज में फुल मून स्मॉल ऑन स्मॉल मून आ जाता है मैम, उसको ऑल कहते हैं। पोर्शन ऑफ मून दिखाई देने लग जाता है बेटा स्काई में, ठीक है। यस, क्या बोलते हैं क्रिसेंट क्रिसेंट मून। यस आगे आगे अगेन बेटा आगे आगे वो मून बढ़ता जाता है, ठीक है, उसका साइज कंप्लीट होने लग जाता है बच्चे, थोड़ा सा दिखाई देता है ना उसका पार्ट, उसके बाद वो कंप्लीट होने लग जाता है, अगेन वो फुल मून बन जाता है बच्चे, ठीक है। समझ ओके आ गया मैम। बेटा? जो हाफ मैम हाफ ये मून शो होते हैं ना बेटा, थोड़े थोड़े पार्ट्स अलग अलग शेप्स मून की हमें शो होती हैं, उनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। अलग अलग देखो, ये आपको शो हुआ होगा, देखो बनाए हुए हैं ना मैम यस बच्चे, जो ये पिक है देखो इसने अपनी नोटबुक पे बनाए हैं ना, मैम बनाए यस। हुए हैं ना अलग अलग, ठीक है, मून्स की शेप बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बेटा वो मून आगे आगे बढ़ता जाता है, कंप्लीट मून बन जाता है, फुल मून बनता है। समझ आ गया बच्चे? इस एक्टिविटी में आपको बताया गया है कि मून की शेप बेटा डे बाय डे डेली चेंज होती है, ठीक है, उसको आपने अपनी नोटबुक पे बनाना है, ठीक है। उसके बाद देखो जब 15th डे आता है तब क्या होता है, वो मून इनविजिबल हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता, उसको हम न्यू मून डे, उसके बाद जो मून आएगा बेटा, इनकमिंग मून है जो न्यू आएगा ना मून, उसको हम बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है। वहां से न्यू मून डे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगले दिन क्या होता है, वो थोड़ा सा पार्ट उस मून का हमें दिखाई देने लग जाता है, आगे वो पार्ट बेटा कंप्लीट बनने लग जाता है उससे मून, ठीक है। थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़े डेज में वो कंप्लीट हो जाता है, अगेन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फुल मून डे, ठीक है। फुल मून डे आएगा उससे, ठीक है, मून की शेप बेटा कंप्लीट हो जाती है। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, इसके बीच यस न्यू मून डे एंड फुल मून डे के बिटवीन जितनी भी शेप्स मून की बनी है बेटा, उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। समझ आ गया बच्चे? मैम यस। आगे पढ़ो नेक्स्ट। For example, Diwali is celebrated on the new moon day. Purnima and Guru Nanak's birthday are celebrated on full moon day. Mahashivratri is celebrated on 13th night of waning moon. Eid al-Fitr is observed on the day following the sighting of crescent moon. Let us try to understand why phases of the moon occur. You have studied in chapter 16 that the moon does not produce its own light, whereas the sun and other stars do. We see the moon because the sunlight falling on it gets reflected towards us. We therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected toward us. Activity 7.2 17.2. Take a big ball or a picture. Paint half of it white and half black. Go out into the playground with the two of your friends. Draw a circle of radius of 2 meters on the ground. Divide the circle into 8 equal parts as shown in figure 17.4. Stand at the center of the circle. Ask a friend to hold the ball at different of points of the circle. Ask her to keep the white portion of the ball always towards the sun. If you are
performing the activity in the morning, then the white portion of the ball should be kept towards the east. If the activity is being performed in the afternoon, then the white portion of the ball should be kept towards the west, in which case the line dividing the white and black portions is kept vertical. Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball, while your hand stands at the points on the circle marked earlier. Draw the shape of the white portion as you see it. Compare your drawings with the different phases of the moon as as shown in figure 17.5. यस, इसमें Remember क्या पता the चला moon. बेटा आपको? बेटा एक मिनट, इसमें देखो पहले क्या पता चला आपको? एक तो देखो इसमें बताया गया बेटा कि मून की खुद की लाइट नहीं होती बेटा, ठीक है? कि कैसे चमकता है दिखाई देता है मून हमें? बोलो। जो उसके आसपास बेटा बाकी की बॉडीज होती है ना, जैसे स्टार्स हो गए, ठीक है, उनसे चमक लेता है मून, ठीक है, समझ आ गया? उनसे लाइट लेके बेटा मून लाइट देता है, ठीक है, मून चमकता है उनसे लाइट लेके। समझ आ गया बच्चे? खुद की लाइट नहीं होती मून की, ठीक है। आ गया सन ये हो आ गया। गया, ठीक है, सन हो गया, सन से लाइट लेके या समझ आ गया बच्चे? आ बेटा गया। समझ आ गया ये पॉइंट? मून की खुद की लाइट नहीं यस। होती, तो सन हो गया या स्टार्स हो गए, उनसे लाइट लेके मून चमकता है बेटा, ठीक है। समझ आया बेटा ये पॉइंट आपको? उसके बाद एक एक्टिविटी आपको दी गई है 17.2। इस एक्टिविटी में बताओगे आपने क्या पढ़ा? 17.2 जो एक्टिविटी आपने अभी पढ़ी, इसमें क्या पढ़ा बेटा आपने? मैम ऐसे पढ़ा कि एक बिग बॉल लो और Yes. और पेंट हाफ ऑफ इट वाइट, आधा उसको वाइट पेंट कर लो, आधा ब्लैक पेंट कर लो और Yes. प्ले में चले जाओ। उसके Yes. बीच में खड़े हो जाओ और उसके आले दुआले 2 मीटर का एक सर्कल बना लो, 2 मीटर Yes. रेडियस सर्कल। और देखो आपको शो होता है ना बच्चे? देखो आपको दिखाया भी गया है यहाँ पे। मैम यस। आगे मैम फिर उसको 8 पार्ट में डिवाइड कर लो वो सर्कल को। सेंटर में खड़े हो जाओ, अपने फ्रेंड को कहो कि बॉल को पकड़ के रखे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्कल, मींस घुमाई जाए। Yes. इफ यू आर परफॉर्मिंग दिस, अगर आप इसको मॉर्निंग में कर रहे हो दिस एक्टिविटी को, तो आप ईस्ट की तरफ खड़े होना। अगर आप Yes. आफ्टरनून में कर रहे हो तो वेस्ट की तरफ खड़े होना। Yes. आगे। उसके बाद बेटा जितना जितना पार्ट आपको उस बॉल का विजिबल होगा जिस टाइप से, ठीक है, उस टाइप से आपने फेस जो मून के फेजेस है उनको अपनी नोटबुक पे बनाना है बच्चे, ठीक है। समझ आ गया बेटा? मैम यस। उसके बाद नेक्स्ट देखो। मैम 17 आगे देखो बेटा। यस मैम। Remember that the moon revolves around the earth. The earth along with the moon revolves around the sun. Can you now guess the relative positions of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? Sketch these positions in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? The size of the illuminated part of the moon visible from the earth Illuminated part. Yes. increases each day after the new moon day. After the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. Activity 17.3.
Draw a circle of about 1 meter diameter on the ground. Ask one of your friends to stand at the center of this circle. You revolve around your friend in such a manner that your face always remains towards him. Can your friend see your back? How many rotations did you complete in one revolution? The moon revolves around the earth in a similar manner. The moon completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth. The moon's surface. The moon is a fascinating object for poets and storytellers, but when astronauts land on the moon, they found that the moon's surface is dusty and barren. There are many craters of बच्चे पहले different ये sizes. टॉपिक समझो बेटा, एक मिनट। आप देखो इसमें, देखो आपको मून्स शो हुए, कुछ पोजीशंस दिखाई गई हैं बेटा मून की, ठीक है। हमें पता चलता है ना बेटा, डे एंड नाइट इनकी वजह से ही होते हैं। मैम पता है यस। ना आपको डे एंड नाइट कैसे बनते हैं बच्चे, पता है ना? मैम यस। ठीक है, आगे देखो इस मून की पोजीशंस अलग अलग दिखाई गई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि स्काई में, आसमान में आपको फुल मून बनने तक, न्यू मून डे से फुल मून बनने तक जितने भी आपको मून के फेजेस दिखाई देते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्ट बेटा, कुछ पोर्शन आपको मून का दिखाई देता है, ठीक है। इनको अपनी नोटबुक में बनाना है बच्चे, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। समझ आ गया बेटा? ओके पता चल मैम। गया बच्चे? उसके बाद मैम देखो यस। के बाद क्या होता है कि द सनलाइट, बेटा जो सनलाइट इससे आती है, ठीक है, वो हमें विजिबल होती है बच्चे, ठीक है। पता चल गया बेटा? किधरों यही? मैम यस। सन से जो लाइट आती है, सनलाइट, ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद देखो 17.3 एक्टिविटी, बेटा ये एक्टिविटी पढ़ी है आपने? आगे पढ़ो बच्चे, इस एक्टिविटी को पढ़ो। Draw a circle of about 1 meter diameter on the ground. Ask one your friend to stand at the center of the circle. You revolve around your friend in such a manner that your face always remains towards him. Can your friend see your back? How many rotations did you complete in one revolution? The moon revolves around the earth in a similar manner. The moon completes one rotation on its axis as it completes a revolution around the earth. The moon's surface. बच्चे इसमें The क्या moon बताया is है? a इससे fascinating आपको एक पॉइंट पता object for चलेगा the क्या? poets and बेटा एक मिनट, इससे क्या पता चला इस एक्टिविटी से आपको? बोलो। मून किसके आसपास घूमता है क्या बेटा? मैम? मून किसके आसपास घूमता है? मून अर्थ के आसपास घूमता है, आले दुआले घूमता है। इसके अलावा अपने एक्सिस पे भी घूमता है बेटा, ठीक है। अपने खुद के एक्सिस पे भी मून घूमता है। समझ आ गया यस बच्चे? मैम। ठीक है, खुद के एक्सिस देखो, सपोज यहाँ पे बेटा, यस। मैम आगे पढ़े। एक मिनट बच्चे, मैम बेटा एक मिनट। सपोज यहाँ पे बच्चे मून है, ठीक है, यहाँ पे मून है, ये अब देखो इसने, ये ऐसे तो घूमता ही है इस साइड, ठीक है बेटा, ठीक है, आई। ठीक। बट अपने एक्सिस पे, खुद के एक्सिस पे भी ये घूमता है बच्चे, ठीक है। खुद के एक्सिस पे, जैसे मून सपोज यहाँ पे है बच्चे, ठीक है, ये खुद के एक्सिस पे भी घूमता है। समझ आया बेटा? पता चल गया बच्चे, खुद के एक्सिस पे भी घूमता है ये, ठीक है। मैम यस। पता चल गया बच्चे? लग Yes, बेटा गया। ma'am. समझ आ गया ना? आगे देखो नेक्स्ट, Yes मैम। उसके बाद आगे देखो बेटा, पढ़ो आगे।
पढ़ो मैम बच्चे पढ़े? नेक्स्ट टॉपिक. यस, द मून इज अ fascinating object. The moon is a fascinating object for poets and storytellers. But when astronauts landed on the moon, they found that the moon's surface is dusty and barren. There are many craters of different sizes. It also has a larger number of steep and high mountains. Some of these are as high as the highest mountains on the earth. The moon has no atmosphere. It has no water. Can any life exist on the moon? Did you know? On July 21, 1969, Indian time, the American astronaut Neil M. Armstrong landed on the moon for the first time. He was followed by Edwin Aldrin. The stars. What other objects do you see in the मून, night? ये आपको मून पे दिखाई हुई है प्लेस, ठीक है, समझ आ गया बच्चे? ठीक है, एक स्मूथ प्लेस नहीं होती बेटा, ठीक है, मैम हाई ये माउंटेन से बने होते हैं, ठीक है, कहीं पे बेटा ज्यादा उठा होता है, कहीं पे दबा होता है, ठीक है, समझ आ गया बच्चे? बेटा समझ आ गया? लैंड कैसी मैम होती ये है मून पे, ये दिखाया गया आपको यहाँ पे. आगे मैम देखो आपकी नेक्स्ट आवाज नहीं क्लियर है. 17.2 बेटा. The stars. What other objects do you see in the sky? There is a large number of stars in the sky. Observe carefully on the dark night and from a place away from a big city. Are all the stars equally bright? Are they of the same color? In fact, stars emit light of their own. The sun is also a star. Why does it appear so large compared to the other stars, which appears bigger? A football placed near you or a football placed at a distance of 100 meters. The stars are millions of times farther away than the sun. Therefore, the stars appear to us like points. The sun is nearly kilometers, 150 million kilometers away from the Earth. The next nearest star is Proxima Centauri. It is at a distance of about 40 million kilometers from the Earth. Can you read this distance in kilometers conventionally? Some stars are even further away. Such large distances are expressed in another unit known as light year. It is the distance traveled by light in 1 year. Remember that the speed of the light is 300,000 kilometers per second. Thus, the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes. The distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years. In fact, the stars are present in the sky during the day time also. However, they are not visible then because of the bright sunlight. Observe some prominent star or a group of stars in the sky for about 2 hours or more. What do you find? Do you find any change in the positions of stars in the sky? You will find that the stars appear to move from east to west. A star which rises in the east in the evening sets in the west in the early morning. Why do stars appear to move from east to west? Let us find out. Activity 17.4. बस एक Stand in मिनट the center of the big. बेटा, एक मिनट. हमें कैसे पता चलता है कि स्टार्स की बेटा पोजीशन चेंज होती है? कैसे बता सकते हैं हम? हमें देखो फ्लक्चुएट होते, ट्विंकल होते दिखाई देते हैं. क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वो ज्यादा डिस्टेंस पे है, ठीक है, हमसे ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा हमें लगता है कि ज्यादा डिस्टेंस पे है. ज्यादा डिस्टेंस से होने की वजह से क्या होता है कि हमें स्मॉल दिखाई देते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे इतनी ज्यादा हाइट पे होती है तो उसकी लाइट, उससे बेटा लाइट अपनी आई तक कैसे पहुंचती है? उसकी एक्चुअल पोजीशन से लाइट अपनी आई तक बेटा हाइट से पहुंचती है. कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो ज्यादा हाइट पे होती है ना, ठीक है, उससे लाइट अपनी आई तक कैसे आती है? अपनी आईज तक लाइट कैसे पहुंचती है? उसकी एक्चुअल पोजीशन से हाइट पे हमें वो चीज दिखाई देती है.
समझ आ गया बच्चे? जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है कि उसकी एक्चुअल पोजीशन कहीं पे होती है बेटा, ठीक है, बट हमें वो चीज हाइट पे दिखती है, जिसकी वजह से अपनी आईज को फ्लक्चुएट होती दिखाई देती है वो चीज। समझ आ गया बच्चे? समझ आ गया बेटा? जिसकी वजह से हमें लगता है उस फ्लक्चुएशंस की वजह मैम से, यस। पोजीशन की चेंजेस की वजह से हमें लगता है कि वो चीज ट्विंकल होती है, ठीक है। समझ आ गया बेटा? ट्विंकल Yes, होते दिखाई ma'am. देते हैं इसकी हेल्प मैम से। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो बच्चे। नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो बेटा। बेटा आवाज आती है आपको? आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज आ तो रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही। बच्चे एक्टिविटी कट पढ़नी जा है। रही है नेक्स्ट जी। नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो। बेटा मैंने ये बताया आपको कि हमें स्टार्स ट्विंकल होते क्यों दिखाई देते हैं, क्यों ट्विंकलिंग दिखाई देती है उनकी। ट्विंकल होते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमसे मुझे ज्यादा देख नहीं। डिस्टेंस पे होने की वजह से हमें वो छोटे दिखाई देते हैं बच्चे, ठीक है। कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जो हमसे ज्यादा हाइट पे होती है, तो उससे बेटा जब लाइट अपनी आई तक पहुंचती है तो उसकी एक्चुअल पोजीशन से हाइट से लाइट अपनी आई तक पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स उसकी एक्चुअल पोजीशन पे ना होके हमें हाइट पे दिखते हैं, तो उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। समझ आ गया बच्चे? पोजीशन उसकी चेंज दिखाई देने की वजह से हमें लगता है कि फ्लक्चुएट होते हैं वो, जिसकी वजह से हमें वो कट जाता है। ट्विंकल होते दिखाई देते हैं बच्चे। समझ आ गया? फ्लक्चुएट क्यों होता बेटा है? उन फ्लक्चुएशंस की वजह से हमें लगता है कि वो ट्विंकल होते हैं, ठीक है। बट प्लैनेट्स के केस में वो ट्विंकल होते क्यों नहीं दिखाई देते? प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखाई देते बच्चे ट्विंकल होते? क्यों नहीं ट्विंकल होते? क्योंकि मैम वो ज्यादा दूर नहीं होते। बड़े साइज के दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। तो उनमें ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं बनती बच्चे, ठीक है। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया? ठीक है। यस ड्यू टू मैम। लेस डिस्टेंस, ठीक है, हमें क्या दिखाई देते हैं, वो बड़े साइज के दिखाई देते हैं। बड़े साइज के दिखाई देने की वजह से उसकी एक्चुअल पोजीशन हमें विजिबल है बेटा, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आती, जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस नहीं बनती। समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो बच्चे, नेक्स्ट एक्टिविटी पढ़ो। पढ़ते हैं मैम। Stand in the center of a big room and start rotating. In which direction will the objects in the room appear to move? Do you see them moving in the directions opposite to her motion? Paheli recalls that when she is in a moving train, the nearby trees and the buildings appear to move in the backward direction. If the star appears to move from east to west, could it mean that the earth rotates from west to east? Activity 17.5. Take an umbrella and open it. Make about it 10 stars out of white paper. Paste on the star at the position of the central rod on the umbrella and others at different places on the cloth near the end of each fork. Now rotate the umbrella by holding its central rod in your hand. Observe the stars of the umbrella. Is there any star which does not appear to move? Where is this star located? If there were no star, there were no appear move. Which is this star located? If there were a star located where the axis of rotation of Earth meets the sky, could star also be stationary?
There is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move. 17.3 constellations. Look at the sky for some time. Can you see some stars forming groups with the shapes like those? In figure point 17.11, the stars forming a group that has a बेटा recognizable shape एक मिनट called बच्चे, constellation. इस 17.5 एक्टिविटी से आपको क्या पता चला? इससे मैम हमें दो एक्टिविटी पढ़ ली मैम। कॉन्स्टलेशन हमने कहा है कि इस रूम के सेंटर में खड़े हो जाओ और रोटेट करना स्टार्ट दो। मैंने इसको कर दो। यस, और फिर देखो कि जो ऑब्जेक्ट है रूम के वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। पहेली ने किया है मूविंग इन द नियर बाय ट्रीज बिल्डिंग्स अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। वो बैकवर्ड डायरेक्शन में घूमे थे ऑब्जेक्ट्स। इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वैसे अगर स्टार्स ईस्ट से मींस ईस्ट से अपीयर होते हैं और वे में could it mean that the earth rotates from west to east? Take an umbrella and open it. umbrella लो और open कर लो इसको और return Yes. 15 stars Box से चिपका क्या दो। बनाने इसको हैं? white paper लेके stars बना के चिपका दो। यस, Paste on a उसके star बाद at the position is central node of the umbrella. जो उसके लाइंस हो गए उस पर चिपका दो स्टार्स and other separate places on the cloth near of the end. और अदर और कुछ का कहीं मतलब क्लोथ पे चिपका दो। at different यस बेटा, now read the umbrella by holding it in your hand. अब umbrella को rotate का start कर दो। observe the star umbrella. is there any star which does not appear to move? क्या कोई भी स्टार घूम रहा है? Where is this star located? Star कहाँ located होता है? If there were a star located where the axis of rotation of the earth meet the sky, could the star also be stationary? क्या star earth के axis पे located होता है? Could the star also be stationary? क्या star भी stationary है? This is actually a star, the pole star, which is situated in the direction of the Earth's axis. It does not appear to move. Constellations. Look at the sky for some time. कुछ देर के लिए sky में देखो. You see some stars forming groups with shapes like those in 17.1. क्या वो Yes. stars shapes बना रहे होते हैं? The stars form